Hello friends, welcome to next part of this chapter. We are going to continue exercise 5.3 question number 3. First question is there, given value of A, value of D, value of AN means last term, and find the N as well as SN. So यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, तो जैसे ही हमने प्रीवियस जो एग्जांपल देखा कि पहले वैल्यू ऑफ एन फाइंड करेंगे उसके बाद एस एन. तो लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ एन. We have value of A is equal to 5, value of D is equal to 3, and value of AN is equal to 50. We know that AN is equal to A plus N minus 1 into D. So value of AN we have, yes, 50. 50 equal to value of A 5 plus n minus 1 as it is, and value of D is given 3. So 50, this 5 is plus, let's take to left side, it will be minus, which is equal to n minus 1 into 3. So let's find value of n minus 1 into, sorry, not 5, 3 is equal to 50 minus 5 means 50 minus 5 means 45. So n minus 1 is equal to 45. This is in a multiplication, 3 in multiplication, now it will be in division. 15 4s are 45. So we have a value of n minus 1 is 15, but we have to find value of n. Value of n is equal to 15 minus 1, sorry, here is minus, then it will be plus, it is 16. So we have value of n is 16. Now we want to find the value of Sn. So how to find value of Sn? Yes, we know that formula of Sn is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into D. This formula we know that, but if also we another formula we know that is n divided by 2 a plus an क्या है, an हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जो फॉर्मूला है उसकी an की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे आप देखो सिंपली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पर यहाँ पे 2 है तो सिंगल में कॉमन ले लेता हूँ, फिर जो बचा उसको मैं क्या कह देता हूँ, an. सो वी हैव वैल्यू ऑफ a, वी हैव वैल्यू ऑफ an, वी हैव वैल्यू ऑफ n, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ Sn. सो लेट्स डू दैट. n की वैल्यू क्या है, अभी मिली 16 डिवाइड बाई 2 इंटू वैल्यू ऑफ a गिवन 5, वैल्यू ऑफ an also given 50. So 16 divided by 2 will be 8. 50 plus 5, it will be 55. 55 multiple with 8. So we got value of Sn is equal to 5 8s are 40. 5 8s are 40 plus 4, 44. So we have value of Sn 44. Next question is, we have next question, given value of A is 7, value of A 13, 35, and value of D we want to find, and value of S 30 we also want to find. So जो हमारे पास है वहीं से शुरू करते हैं. We have value of A is 7, value of A 13 is 35, then we know that one formula related to an is equal to a plus n minus 1 into d. वैल्यू ऑफ an, बट हमें an से कुछ लेना देना नहीं है, बट हमारे पास A13 है. सो A13 के लिए करते हैं, A13 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ n की जगह आप A13 भी लिख सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ A13 क्या है हमारे पास, यस 35. वैल्यू ऑफ A 7, वैल्यू ऑफ n
यस 13 है तो यहाँ पे भी 13 ही आएगा. 13 minus 1 वैल्यू ऑफ डी दैट वी वांट टू फाइंड. सो लेट्स फाइंड 35. इस 7 को इस तरफ लेके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 minus 1 विल बी 12d. सो d इज इक्वल टू 35 minus 7 will be 28. Yes, 28 divided by 12. यहाँ पे 12 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे 12 डिवीज़न में आ जाएगा. 4 3s are 12 and 7 4s are 8. So 4 cancel here. We got value of d is 7 by 2. We have value of d is 7 by 2. Now we want to find value of S13. So S13 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. S13 is equal to n by 2 a plus an. यहाँ पे मैं पहले n के लिए लिख देता हूँ. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अभी हमें किसके लिए फाइंड करना है? S13 के लिए. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 बाई 2. वैल्यू ऑफ a क्या है? 7 प्लस an मीन्स a13. सो a13 की वैल्यू क्या है? अभी हमने हमारे पास थी यहाँ पे क्वेश्चन पे ही है हमारे पास. a13 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है 35 an की वैल्यू. सो नाउ जस्ट वी वांट टू सिंप्लीफाई. 13 by 2 into 7 plus 35 will be 42. 42 here cancel 42. 21. So now just we want to multiplication of 21 multiple with 30. 0 1 2 3 6 3 7 2. So we have value 273. So value of S13 which is equal to 273. Here we have third question. Given that A12 is equal to 37, D is 3, find value of A as well as S12. सो जो हमारे पास है वहीं से शुरू करते हैं. हियर वी हैव वैल्यू ऑफ A12 इज इक्वल टू 37 एंड वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 3. सो जो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट an is equal to a plus an minus 1 into d. वैल्यू ऑफ an हमें क्या फाइंड करनी है? A12 हमारे पास है तो A12 से शुरू करते हैं. A12 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है. n की वैल्यू क्या होगी? यस 12 माइनस 1. वैल्यू ऑफ d वो हमारे पास है 3. S12 की वैल्यू क्या है? 37. सो 37 ए को हम ऐसे ही रहने देते, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते. a प्लस 11 इंटू 3 इट विल बी 33. यहाँ पे 37 एज इट इज, यहाँ पे 33 प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. माइनस 33 वैल्यू ऑफ a. सो वैल्यू ऑफ a क्या होगी? 37 माइनस 33 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? यस 4. सो वी हैव वैल्यू ऑफ a 4. अगर a की वैल्यू मिल गई, अब हम डायरेक्टली Sn वाला फॉर्मूला लगाते. Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस an. तो Sn की जगह अब हम क्या लिखेंगे? हमें फाइंड जो करना है वही लिखेंगे. S12 इज इक्वल टू n बाई 2 मीन्स 12 बाई 2. वैल्यू ऑफ a वो अब हमारे पास है 4. an मीन्स A12 37 हमारे पास है ऑलरेडी इन क्वेश्चन. सो 12 बाई 2 विल बी 6. 37 प्लस 4 मीन्स 41. सो 41 मल्टीपल विथ 6 इट विल बी
6246. So we have value of S12 is equal to 246. So this is our answer. Question number 4 है, given value of A3 15, value of S10 125, find D as well as A10. ओके, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कोई भी सम में आपको कहा गया है कि ये फाइंड करो, मतलब हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला का एक्सपांड करके एक्सपोर्ट करके कुछ भी बना सकते, बट हमारे पास मेनली 2 फॉर्मूला है टू फाइंड वैल्यू ऑफ an, टू फाइंड वैल्यू ऑफ sn। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमें जो हमारे पास है वहाँ से शुरू कर देना है, पीछे नहीं हटना। तो जो है वहाँ से शुरू करते हैं। Here we have value of A3 is equal to 15 as well as S10 is equal to 125। अभी हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ D। D कैसे फाइंड करेंगे, an वाला जो फॉर्मूला है उसमें D आता है, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। We know that an is equal to a plus n minus 1 into d। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे 3 की वैल्यू a3 की वैल्यू है, तो वहीं से यूज करके सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो an की वैल्यू क्या है 15, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता है नहीं, हमें a की वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसे ही रख देते हैं। प्लस n-1 की वैल्यू हमें पता है नहीं, वो भी हमें n-1 की वैल्यू, यस n की वैल्यू तो पता है हमें, 3 - 1 प्लस इंटू d की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो इसका जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 1 विल बी 2d। यहाँ तक रखते, ठीक है। नाउ जो हमारे पास दूसरा क्या S10 की वैल्यू है, तो वहीं से शुरू करते हैं। S10 इज इक्वल टू हमें पता है, S10 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 10/2 इंटू a की वैल्यू हमें पता नहीं, इंटू an मीन्स A10 होता है, A10। ठीक है, A10 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। S10 की हमें वैल्यू पता है, तो वो लिख देते हैं। S10 की वैल्यू क्या है 125 इज इक्वल टू 10/2 इंटू a की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, A10 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। 125 मल्टीपल विथ 2 विल बी 125 मल्टीपल विथ 2 एंड yes 10 in division, it will be a plus A10। So we have 125 into 2 will be 5 2s are 10, 5 and 2, 250 divided by 10, 10 cancel, a plus A10 which is equal to a plus A10 which is equal to 125। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी भी a की वैल्यू नहीं है, A10 की भी वैल्यू नहीं है, डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। यहाँ पे हमें A10 को लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें A10 को लिखना है दूसरे तरीके से, A10 को A10 का an वाला जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू d, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। A10 है तो क्या आएगा, a तो आएगा है फॉर्मूला में a प्लस n-1, n-1 मीन्स 10-1 इंटू d इज इक्वल टू 25। ये मैंने क्या किया है, A10 के लिए फॉर्मूला लिखा है। ये डोंट बी कंफ्यूज, जो ये वाला फॉर्मूला है ना an, हमने 10 के लिए यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। a प्लस a विल बी 2a प्लस
10 minus 1 will be 9D which is equal to 25. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 भी होगा. कहाँ होगा इक्वेशन नंबर 1? यस, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1. सो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 नीचे नीचे लिख देता हूँ ताकि पता चले. a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट है 2a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 25. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो अभी क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करवाएंगे, फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे ताकि हमें वैल्यू ऑफ d मिल जाए. लेट इक्वेशन 1 multiply with 2 and do equation 1 minus 2. यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन गया इक्वेशन 2a प्लस 4d प्लस 30. ठीक है, इसका आप सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो हियर 2a कैंसल. 4 माइनस 9 इट विल बी माइनस 5d विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है 30 माइनस 25 इट विल बी 5. सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ d क्या मिलेगी, ये 5 डिवीजन में जाएगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा और -1 ऐसे ही रहेगा. सो वैल्यू ऑफ d हमें मिलेगी -1. इफ वी हैव वैल्यू ऑफ d इज -1 सो वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ, जो हमें दूसरी जो हमें फाइंड करना है, इट मीन्स a10 की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी. सो वैल्यू ऑफ a पहले फाइंड कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ a, ये जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू ऑफ d सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ a मिल जाएगी. सो लेट्स सब्सटीट्यूट. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं. मैं 2 में लिखता हूँ. ओके, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, -1. So 2 into -1 plus 9d which is equal to 25. So 9d is equal to 2 1 2. यहाँ पे -2 होगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 25 plus 2 will be 27. So we have value of d is equal to 27 divided by 9 which is equal to 3. We have value of d is, sorry, value of a, यहाँ पे हमने d लिखा है, ये d, sorry, that's my mistake. Put the value of d in equation 2. हमने a की जगह -1 लिख दिया है तो ये गलत है ये पोर्शन, सॉरी फॉर दैट. हमें d की जगह सब्सटीट्यूट करना था, मैंने a की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है. सो लेट्स मेक इट चेंज. 2a एज इट इज प्लस 9. अभी d की जगह क्या लिखेंगे, -1 एंड वैल्यू ऑफ इक्वल टू क्या है 25 जो ऑलरेडी है हमारे पास. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमें वैल्यू ऑफ a मिल जाएगी. सो 2a इज इक्वल टू 9 1 -9 होगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 25 प्लस 9 will be 34. So we have value of a is equal to, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. 34 divided by 2 will be 17. So we have value of a is 17 and value of d is -1. Now we can easily find value of a10. a10 के लिए a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है. वैल्यू ऑफ a अब हमारे पास है 17, n मीन्स 10 - 1, d की वैल्यू है -1. सो 17
plus 10 minus 1 will be 9, 9 multiple with minus 1, so it will be minus 9 होगा. So 17 minus 9 which is equal to 8. So value of A10 is equal to 8. Let me check. नंबर 5 है हमारे पास. D की वैल्यू दी गई है, S9 की वैल्यू दी गई है. हमें वैल्यू ऑफ A एंड A9 वी वांट टू फाइंड. सो जो है वहीं से शुरू करते हैं. वी हैव वैल्यू ऑफ D इज 5 एंड वैल्यू ऑफ S9 इज इक्वल टू 75. तो S9 की वैल्यू है तो S9 से ही शुरू करते हैं. S9 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, जो फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो S9 की वैल्यू क्या है? S9 की 75 ऑलरेडी है. सो n की वैल्यू होगी 9/2. 2 a की वैल्यू नहीं है. n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1. d की वैल्यू वो है हमारे पास 5. सो 75 इज इक्वल टू 9/2. 2a plus 9 minus 1 will be 8. 8 multiple with 5. 8 multiple with 5. 40. सो यहाँ से आप देखो 2 कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं 2. सो वो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ. 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 कॉमन निकाला, बचा क्या? a प्लस 20. सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन की मेथड है. जो भी मेथड आपको यूज सिंप्लीफिकेशन में करनी है कर सकते हैं. सो ये 9 डिवीज़न में आएगा. a प्लस 20 ऐसे ही रहेगा. ये 9 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आ जाएगा तो डिवीज़न में 75 डिवाइड बाई 9. सो यहाँ पे 25 3 जा 75 होता है और यहाँ पे 3 3 जा 75. 3 कैंसिल हो जाता है. सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. a इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी है. 25 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी है. ये प्लस 20 है, उस तरफ आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा. ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. 25 दिस 3 मल्टीपल विथ 20 विल बी 60. 60 डिवाइड बाई 3. 25 माइनस 60 वो होगा 35. minus 35 divided by 3. So we have value of a is equal to minus 35 divided by 3. So now we want to find a की वैल्यू हमें मिल गई. अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a9. So let's find वैल्यू ऑफ a9. a9 का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू ऑफ a क्या है? यस, अभी हमने फाइंड की माइनस 35 डिवाइड बाई 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1. डिफरेंस भी हमारे पास है 5. सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ an. लेट्स सिंप्लीफाई. माइनस 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 माइनस 1 9 माइनस 1 विल बी 8. 8 मल्टीपल विथ 5 इट विल बी 40. So let us simplify this. Minus 35, 3 multiple with this term 40, it will be 120 divided by 3. So 120 minus 35, it will be 85 divided by 3. So value of A9 is equal to 85 divided by 3. नंबर 6 है. नंबर 6 हमारे पास गिवन वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ Sn. सो वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ n एज वेल एज an. सो लेट्स बिगिन. वी हैव वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ d 8, वैल्यू ऑफ Sn 90. So here we have Sn, so we start with Sn formula. Sn is equal to n by 2 into
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ये एस एन वाला फॉर्मूला है, तो एस एन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 90, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देंगे n/2। 2a की वैल्यू है हमारे पास 2, n minus 1 as it is. Value of d also we have 8. So just let us simplify this. 90 this multiple with 2, ओके मल्टीपल नहीं कर देते, ऐसे ही रहने देते। n/2 इसका सिंप्लीफिकेशन है 2 2 ज़ा 4 प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन करवा देते हैं 8n माइनस 8। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन होगा 90 एज इट इज n/2 प्लस 4 माइनस 8, इट विल बी 8n माइनस 4। ठीक है, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे। 90 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, इसमें से 4 कॉमन आ गया, चलो 4 कॉमन आ गया और बचा क्या यहाँ पे 2n, 4 कॉमन आ गया तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, यहाँ पे 4 2 से कैंसिल हो गया। सो 90 इक्वल टू 2n इंटू 2n माइनस 1, यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ तो ये 2n हो गया मल्टीप्लीकेशन में। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन एंड 19 को इस तरफ ले लेते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दे। 2 2 ज़ा 4n स्क्वेयर माइनस 2n, ये प्लस है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 4n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करना हमें आता है, 90 इंटू 4 करेंगे और उसका फैक्टर फाइंड करके माइनस 2n लाएंगे। तो मुझे ऑलरेडी फैक्टर पता है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। प्लस 18 माइनस प्लस 80n माइनस 20n माइनस 90 इक्वल टू 0। मुझे ऑलरेडी फैक्टर पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन आएगा 2n कॉमन आएगा, बचेगा क्या 2n प्लस 9, यहाँ में से कॉमन क्या आएगा, यस 10 आएगा, माइनस 10 कॉमन आएगा, माइनस 10 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यस 2n माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है तो आएगा 2n प्लस 9 कॉमन आता है, बचेगा क्या 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0, तो हम दोनों के लिए करेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ये 9 उस तरफ जाएगा माइनस 9, ये 2 डिवीज़न में जाएगा माइनस 9/2। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 10 उस तरफ जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 5। तो हमें n की एक वैल्यू मिली 5 एंड दूसरी वैल्यू माइनस 9/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू माइनस है, तो n की वैल्यू कभी माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी, यस 5। ओके, सो वैल्यू ऑफ n करेक्ट वैल्यू इज 5। सो हमें n मिल गया, अब हमें an फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड an। यहाँ पे मैंने an का फॉर्मूला लिखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें n की वैल्यू अभी अभी मिली है, क्या मिली 5। ठीक है, 5 n की वैल्यू है, a की वैल्यू थी ऑलरेडी हमारे पास, d की वैल्यू थी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 8।
सो आंसर मिलेगा ए एन इज इक्वल टू देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 32 plus 2 will be 34. So value of a n is 34. Number 7 है given value of a, value of a n, value of s n, and we want to find value of n as well as d. So let us start. हमारे पास जो है वहाँ से शुरू करते हैं. एस एन है तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n by 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये हमारे पास है. ठीक है. सो एस एन की वैल्यू क्या है 210. एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन बाई 2 एज इट इज रखते हैं. ए की वैल्यू हमारे पास है 8, एन की वैल्यू भी है 62. सो 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 62 प्लस 8 विल बी 70. 70 ये कैंसल, 35 हो जाएगा. 35. सो वैल्यू ऑफ एन हमें मिलेगी 210 डिवाइड बाय 35. इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. यहाँ पे हम ऐसे कर देते 21 को सामने जाने देते. ये 2010 है, सॉरी 210 है, उससे मल्टीप्लिकेशन करवा देते तो हमें मिल जाता 420. 420 वो मैं यहाँ पे ओके डायरेक्टली इसका डिवीज़न कर लेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है. 35 इंटू 6 करेंगे हम यहाँ पे. 35 इंटू 6 तो 35 कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा 6. सो वी हैव वैल्यू ऑफ एन इज 6. ओके. दूसरी फॉर्मूला मैं यहाँ पे दूसरा सिंप्लीफिकेशन लिखता हूँ. अगर ऐसा है ये आ गया, चलो ये भूल जाओ, हमने कैंसिल नहीं किया. यहाँ 70 है, यहाँ 2 है. इस 2 को सामने जाने देंगे तो 420 हो जाएगा. 420 इज इक्वल टू एन इंटू 70 होगा. सो वी हैव वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 70. 0 0 कैंसल. 7 6 जा 42. सो वी हैव ऑल्सो वैल्यू ऑफ एन इज 6. नाउ नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी. डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 62. ए एन की वैल्यू है 62. ए की वैल्यू भी हमारे पास है 8 प्लस एन की वैल्यू अब हमारे पास है 6 माइनस 1 इंटू डी. सो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ डी. 62 प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d. सो d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 54 मिलेगा हमें. 54 डिवाइड बाय 5. सो दिस इज आवर आंसर 54 डिवाइड बाय 5. दिस इज करेक्ट आंसर. नंबर 8 है यहाँ पे हमारे पास. वैल्यू ऑफ ए एन इज 4, वैल्यू ऑफ डी इज -2, वैल्यू ऑफ एस एन -14. सो वी वांट टू फाइंड एन एज वेल एज ए. सो लेट्स बिगिन. वी हैव what we have value of a n is equal to 4, value of d is equal to 2, value of s n is equal to -14. तो जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे. a n है सो वी a n is equal to a plus n minus 1 into d. So we have value of a n is 4. 4 equal to a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू भी नहीं है. वैल्यू ऑफ d है हमारे पास, वैल्यू ऑफ d है 2. सो 4 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2. ठीक है. सो अभी सिर्फ हम a को रखते हैं और बाकी ये जो टर्म है इसको इस साइड ले लेते हैं. a इक्वल टू 2n प्लस है 4 एज इट इज. ये दोनों टर्म हम अदर साइड ले लेते हैं. 2n प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो -2n. प्लस 2 है, सॉरी -2 है, इस तरफ आ जाएगा तो +2. तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 6 माइनस 2n. 6 माइनस 2n. 4 + 2 विल बी 6. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है.
नाउ यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आगे कुछ तो हो नहीं सकता। वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी, बट हमें एन के फॉर्म में मिली तो हमें एन की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ एन। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ऐसा इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। सो एस एन की वैल्यू क्या है, -14, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 6 - 2n, तो हम ए की वैल्यू ए लिखते थे, 6 - 2n प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, यस ए एन की वैल्यू है 4। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, n बाई 2, 6 + 4 विल बी 10 - 2n, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, n बाई 2 इंटू 2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 5 - n, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वेयर, 5n माइनस n स्क्वेयर, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस -n स्क्वेयर है, इसको इस तरफ ले लेते हैं, प्लस 5n को भी इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी यहाँ ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो हमें पता है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, और 14 के फैक्टर क्या हो गए, 7 2 7 - 2 विल बी 5। सो लेट अस डू दैट, 7 2 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से कॉमन आएगा n, बचेगा n माइनस 7 प्लस इसमें से कॉमन आएगा 2n माइनस 7 इक्वल टू 0। सो नाउ इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते हैं, n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, ये 7 उस तरफ जाएगा तो +7, और दूसरा क्या पॉसिबल है, n इज इक्वल टू -2। सो 2 आंसर हमें n के मिले। बट अब देखो n की वैल्यू कभी माइनस तो हो नहीं सकती, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। तो n की सही वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 था, 6 - 2n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 - 2n। तो अभी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 7 लिख देंगे तो ठीक है। सो लेट अस डू दैट। सो a इक्वल टू क्या है, 6 - 2n ऑलरेडी है, तो n की जगह हम 7 लिख देते, 6 - 7, सॉरी 2 तो है यहाँ पे अंदर 7, तो 6 माइनस क्या होगा, 6 - 14। सो ये होगा, a की वैल्यू होगी 8, वैल्यू ऑफ a इज 8। नंबर 9 है, गिवन वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ s, s मीन्स sn, s 192 and value of d we want to find. So let's start. We have what we have, value of a 3, value of n 8, value of s 192. We want to find value of d, but sn हमारे पास है तो sn का फॉर्मूला लिखते हैं, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो sn की वैल्यू क्या है, sn की वैल्यू यस 192, n की वैल्यू क्या है 8 बाई 2, 2a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है तो 8 है, 8 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, यस d की वैल्यू है, कहाँ है d की वैल्यू तो फाइंड करनी है। सो 192 इज इक्वल टू 8 बाई 2 विल बी 4, 2 3 6, 8 माइनस 1 विल बी 7d। तो इसको डिनोमिनेटर में जाने देते हैं,
192 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 192 डिवाइड बाई, सॉरी नॉट 2, हियर इज 4, 192 डिवाइड बाई 4 वो हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 2, 4 8 जा 32 0। ठीक है, तो ये होगा 48। 48 ये प्लस 6 है, इस तरफ आएगा तो -6 इज इक्वल टू 7d। सो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगी, 48 माइनस 6 होगा 42 डिवाइड बाई 7। सो 42 डिवाइड बाई 7, सो 7 6 होता है 42, सो 7 6 42, इट मीन्स value of d is 6, so we have value of d 6. Okay, last 10th one, given value of L 28, value of S 144 and there is total 9 term। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके किया गया, there are total 9 term। 9 terms means n की वैल्यू 9 है। term find a, we have to find value of a, so Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, L है मीन्स हम जो वो वाला टर्म ही यूज करेंगे a प्लस L। सो Sn की वैल्यू क्या है, Sn मीन्स S की वैल्यू है 144 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 9 बाई 2, वैल्यू ऑफ a दैट वी वांट टू फाइंड, वैल्यू ऑफ L वो क्या है, वैल्यू ऑफ L yes 28, 144 मल्टीपल विथ 2 डिवाइड बाई 9, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। सो a प्लस 28, सो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, a प्लस 28 इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पे 144 वो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 है, ये क्या होगा 3 3 जा 9। सो यहाँ पे 12 का भी होगा 4 3 जा 4 3 जा 4 3 जा 3 कैंसल 3 कैंसल 3 कैंसल 3 कैंसल, 4 4 जा 6 6 2 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। So we have value of a is equal to 32 minus 28, 32 minus 28 means 4, we have value of a is 4। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 इंटू 12 किया, फिर 12 का भी हमने फैक्टर किया, 4 3 जा 4 3 जा 3 3 कैंसल, यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 32 माइनस 28, सो वी हैव आंसर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। सो इस पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है और हर क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके, सो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।